When I was a young girl, like any other young girl, I used to be very talkative. All the time chattering, jabbering. मेरी माँ बहुत परेशान रहती थी मुझसे. Why do you talk so much? Why don't you focus on your career? Why don't you focus on your studies? Why don't you focus on your education? अलग अलग तरीके से मेरी माँ की चिंता मुझे दिखती थी. Hello friends, welcome to OLE, Online Learning with Experts. Today we are here, we मतलब आप और मैं आज एक सेशन करेंगे. We'll conduct a session together where we'll understand about careers related to public speaking. Now you must be wondering why this session? I'll tell you why. This is an initiative started by OLE, realizing the confusion that is prevalent in our today's society. हमारी जो यंग जनरेशन है, जैसे आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि करना क्या है, कौन सा कोर्स करना है, कौन सी डिग्री करनी है, कौन सी पढ़ाई करनी है, और आपसे ज़्यादा आपके पेरेंट्स परेशान रहते हैं. चलिए, पेरेंट्स से याद आया, लेट मी शेयर माई स्टोरी विथ यू. When I was a young girl, like any other young girl, I used to be very talkative. All the time chattering, jabbering. मेहमान आ जाए, relatives आ जाएं, friends आ जाएं, पड़ोसी आ जाएं, I would never stop talking. And the best part was that they used to love to listen to me. सुनना उनको पसंद था मुझे. अच्छा बोलती थी शायद, ऐसा मुझे लगता है. कम से कम सोचती तो यही थी अपने बारे में. मेरी माँ बहुत परेशान रहती थी मुझसे. Why do you talk so much? Why don't you focus on your career? Why don't you focus on your studies? Why don't you focus on your education? अलग अलग तरीके से मेरी माँ की चिंता मुझे दिखती थी. खैर, समय बीतता गया. I went to school, I went to college. वहाँ पे मैंने कई सारे डिबेट्स, कॉम्पिटिशन्स जीते और फिर मुझे एहसास हुआ that okay, बोलने से भी आपको पहचान मिलती है. Speaking also can give you value to your personality. And then that appreciation, जो मुझे तारीफ मिली, उससे मुझे एहसास हुआ that why not make a career out of it. And from there my journey of being a public speaker started. So, public speaking, public speaker. This is the topic for today's discussion. Why not utilize your talent of speaking well and grow in your career? Now comes the question, what is public speaking? Right? आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मैम अपने बारे में बता रही हैं, लेकिन हमें ये तो जानना है ना कि पब्लिक स्पीकिंग होती क्या है. चलिए शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट. पब्लिक स्पीकिंग, जैसा कि मैंने कहा, लोगों से इंटरैक्ट करना, बोलना ही होता है, लेकिन वहाँ पे हम केयरलेस नहीं हो सकते हैं. हमें सोच समझ के बोलना होता है. फ़र्क होता है ना, हम अपने दोस्तों के संग बात कर रहे हैं या किसी ऑफिस में बात कर रहे हैं, दोनों में फ़र्क होता है. तो ये फ़र्क हमें समझना बहुत ज़रूरी है. ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जिससे आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं? लेट्स डिस्कस दैट नाउ. The first is effective communicator. Communication means how you generate your ideas, how you put across your thoughts to the other person. Communication skills, आपने ये शब्द ज़रूर सुना होगा. तो आपका जो communication है, that should be very effective. Effective means it should have value, it should have sense, it should have effectivity. कोई आपको सुन के प्रभावित हुए बिना रह ना पाए. Then instructional abilities. Friends, प्लीज़ अंडरस्टैंड वन थिंग. पब्लिक स्पीकिंग कोई अलग से इंडस्ट्री नहीं है. अगर आपको ये लग रहा हो कि ये कोई अलग से कोई कैटेगरी है, होता क्या है, ऐसे बहुत सारे करियर्स हैं. देयर आर सेवरल करियर्स विच आर अ पार्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. सम आर कंप्लीटली 100% डिपेंडेंट ऑन पब्लिक स्पीकिंग एंड सम आर पार्शियली. आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ शशि थरूर. ही इज अ पॉलिटिशियन, राइट? हैव यू हर्ड हिम एवर? Trust me, if you talk to me, if you ask me, there is not a single opportunity when I have not gotten impressed by the way he speaks. Of course, he is famous for his English and command over the language, but I'm not trying to say English is the only medium to communicate effectively. English is the only way you can be good at public speaking. नहीं. आप कोई भी भाषा, कोई भी language, your mother tongue, Hindi, English, be it any language, trust me, if you know how to speak, you will be able to make a mark for yourself in every sector. So, Shashi Tharoor, as I said, Karan Johar,
एंकरिंग करते हैं, फिल्म प्रोडक्शन में तो है ही, बट ही इज अ वेरी गुड एंकर. हैव यू सीन Kapil Sharma? Yes, he is a comedian. I'm not saying become a comedian. Of course, you want to become, you can. However, what I'm trying to say is that people like Shashi Tharoor, people like Karan Johar and Kapil Sharma, they are a very good example of effective public speaking. इंस्ट्रक्शनल एबिलिटीज़ की बात मैं कर रही थी. मान के चलिए कि अगर आप किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे काम करेंगे तो आपको इंस्ट्रक्शंस देने होंगे. तो एक अच्छे पब्लिक स्पीकर की पहचान क्या है? ही शुड हैव गुड इंस्ट्रक्शनल एबिलिटीज़. किसको काम कैसे समझाना है, कैसे अपने निर्देश गाइडेंस देनी है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ पब्लिक स्पीकर. लीडरशिप, अभी तो यही बात कर रहे थे ना कि लीडरशिप क्वालिटीज़ जिसके अंदर हैं उसके अंदर पब्लिक स्किल के टैलेंट होना ही चाहिए. ये बहुत क्रिटिकल है. सेल्स एबिलिटी, किसी को कोई प्रोडक्ट बेचना है, आप सेल्स एंड मार्केटिंग टीम में हैं, आपको अपनी कंपनी का कोई सामान आपको प्रमोट करना है, सेल ऑफ करना है, कोई डील क्रैक करनी है, नेगोशिएशन करना है, डिस्कस करना है कि हमारी कंपनी ये प्रोडक्ट इस रेट पे बेचती है, अगला कहता है नहीं भाई, आई वॉन्ट टू बाय दिस ऑन अ सर्टेन अमाउंट. सो फिलिंग अप द गैप इज कॉल्ड नेगोशिएशन. द गैप ऑफ द प्राइसेस. कंपनी कहती है ये प्राइस, बायर कहता है ये प्राइस, तो उसका जो गैप है खत्म करना ताकि डील स्ट्राइक हो जाए, दैट इज नेगोशिएशन. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अ पब्लिक स्पीकर टू नो. इंटरपर्सनल स्किल्स. इंटरपर्सनल स्किल्स मतलब आपस में जब हम बात करते हैं, जब किसी से इंटरैक्ट करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू हैव अ कंट्रोल ऑन योर बिहेवियर. व्हाट टू से, व्हेन टू से. आई विल टेल यू वन थिंग वेरी इंटरेस्टिंग. As I told you, I'm myself a public speaker. I always tell my students, my trainees, that yes, it's very important to know what to say. बहुत ज़रूरी है ये जानना कि आपको क्या कहना है. However, it is more important to know how to say it. उससे ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि वही बात आपको कहनी कैसे है. राइट? टोन चेंज हुई, वॉल्यूम में फ़र्क आया, सारी बात या तो बहुत अच्छे से बन सकती है या अनफॉर्चुनेटली कई बार बिगड़ भी जाती है. एबिलिटी टू इंगेज विद द ऑडियंस. अगर आप बोल रहे हैं और सामने वाला आपको सुनेगा इंटरेस्टिंग वे में, तभी आप एक सक्सेसफुल इफेक्टिव कम्युनिकेटर, पब्लिक स्पीकर बन पाएंगे. तो इस चीज़ पे हमें बहुत ध्यान देना है कि आपके बोलने से कोई बोर ना हो. एक्टिव लिसनर. बोलना 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 ही पब्लिक स्पीकिंग नहीं होती है. स्पीकिंग, नॉर्मली ये गलती करते हैं लोग कि बोलना जब शुरू करते हैं तो दे थिंक कि बस मुझे बोलना है. वी फॉरगेट एट टाइम्स कि बोलने वाला अच्छा सुनने वाला भी होना चाहिए. अगर आप अच्छे से सुनेंगे, इफ़ यू आर गोइंग टू बी अ पेशेंट लिसनर, ओनली देन यू विल बी एबल टू रिप्लाई, respond to the other person's questions or queries. There are so many jobs where you have to come in direct contact with the public. Hotels, restaurant, travel and tourism, aviation industry, जहाँ पे आपको for example airport पे, in fact plane के अंदर, flight के अंदर जो कैबिन क्रू होता है, एयर हॉस्टेसेस होती हैं या ग्राउंड स्टाफ होता है एयरपोर्ट पे, इन सब लोगों को सिखाया जाता है कि आपको आपके पैसेंजर से या होटल में गेस्ट से कैसे बात करना है. ओके, नाउ ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कंपनी नहीं. हेयर ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ऑर्गेनाइजिंग योर थॉट्स. आपको क्या बोलना है, बोलने के पहले बचपन से आपने सुना होगा, माँ बाप ने कहा होगा या टीचर्स ने भी आपको कई बार टोका होगा कि भाई सोच के बोलो, सोच के बोलो. तो ऑर्गेनाइजेशन इज सोच के बोलना कि सामने वाले को मैं क्या कहूँ कि वो बात को समझे और आपसे इम्प्रेस हो, क्योंकि आपका काम ही उस समय सामने वाले को कन्विंस करना है, अपनी बातों से इम्प्रेस करना है. राइट? स्पीच राइटिंग. करण जौहर की मैं बात कर रही थी, कपिल शर्मा की मैं बात कर रही थी. ये दोनों जब भी कोई एंकरिंग करते हैं तो लगता है, हमें देखने से तो ये लगता है कि इनके पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, पर होती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्रिएटिविटी. वाई दीज पीपल आर फेमस. संदीप महेश्वरी बहुत फेमस मोटिवेशनल स्पीकर हैं, विच इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. क्यों लोग उनको सुनते हैं? क्योंकि इनके बोलने में नयापन होता है. ये बात वही होती है, लेकिन उसको कहने का तरीका हर बार नया होता है, जिससे ऑडियंस कनेक्ट करती है, सरप्राइज भी होती है कि अच्छा ये तो हमने पहले कभी सुना ही नहीं था. राइट? नॉलेज अबाउट अ सर्टेन सब्जेक्ट.
बहुत ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स, अगर आपको जिस काम के बारे में बात करनी है उसकी नॉलेज नहीं होगी, सो यू कैन नॉट बिकम अ गुड पब्लिक स्पीकर. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव इनफ एंड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ योर सब्जेक्ट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पैशन. वैसे मैं आपको बताऊं, पैशन खाली पब्लिक स्पीकिंग के लिए नहीं, पैशन आपके अंदर हर काम के लिए होना चाहिए. आप सुबह उठते भी हैं ना, तो यू शुड हैव द पैशन टू हैव अ सक्सेसफुल डे. अगर ये पैशन आपके अंदर आ गया तो पब्लिक स्पीकिंग क्या, आपकी लाइफ में बहुत सक्सेस मिलेगा आपको. राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. पॉपुलर जॉब्स इन पब्लिक स्पीकिंग. फ्रेंड्स, यहाँ पे टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द जॉब्स रिलेटेड टू पब्लिक स्पीकिंग. In our coming sessions at OLE, which I'm sure you're going to hook into, there I'll be explaining each job, each career related to public speaking in details, where you'll be getting information how to learn public speaking, what are the colleges that have courses related to public speaking, so on and so forth. आज is just introduction. Tour guide. ट्रैवल में आप जाते हैं, आप एक पैकेज लेते हैं, आपके बस में भी टूर गाइड्स होते हैं, या आप किसी स्पॉट पे जाते हैं, कोई टूरिस्ट स्पॉट है, यू विल बी सीइंग मेनी टूरिस्ट गाइड. दे आर अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. इतना फनी वे में, इतना इंटरेस्टिंग वे में वो एक बोरिंग से मॉन्यूमेंट को बताते हैं कि आप उससे इम्प्रेस हुए बिना रह नहीं पाते हैं. एक ज़माना था जब टूर गाइड की कोई उतनी वो इम्पोर्टेंस नहीं थी, लेकिन आज के ज़माने में, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, टूर गाइड हैज़ बिकम अ वेरी रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन. एक्टर. एक्टर बनने की इच्छा रखना इंडिया में कोई नई बात नहीं है, बिकॉज वी ऑल आर एसोसिएटेड टू बॉलीवुड इन सम और द अदर वे. एंड व्हाई ओनली बॉलीवुड? Now you have television industry booming, you have web series coming up. So if you are having a small amount of actor in you, आपके अंदर अगर कोई प्रतिभाशाली अभिनेता या अभिनेत्री छुपी है, so there is no harm in becoming that. आपको पता नहीं होगा या शायद पता हो भी, मिस इंडिया जो हमारे यहाँ बनती हैं, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है ताकि वो इंटरनेशनली हमें रिप्रेजेंट कर सके. ये ट्रेनिंग पब्लिक स्पीकिंग में भी होती है. अंडरस्टूड? नाउ टीचर, ट्रेनर. टीचर और ट्रेनर आर द मोस्ट ट्रेडिशनल एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. बचपन से, नर्सरी से, किंडरगार्टन से जो भी टीचर्स ने आपको पढ़ाया है, दे आर, आपको याद होंगे वो, आप उनको भूल नहीं पाते होंगे. कुछ लोग तो आज भी टच में होंगे अपनी टीचर से. क्यों? क्योंकि खाली उनका बिहेवियर नहीं, उनका प्यार नहीं, वो जिस तरह से आपसे बात करते होंगे, जिस तरह से आपको ट्रीट करते होंगे, वो भी आपको मेमोरेबल लगता होगा. सो टीचिंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. अगेन, हेल्थ एजुकेटर. हेल्थ एजुकेटर is also a part of public speaking. Now you must be wondering, health educator क्या होता है? Students, हमारी इस भागदौड़ वाली ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लोग ऐसी बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं जो पहले नहीं हुआ करती थी. फॉर इंस्टेंस, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, अर्थराइटिस, ये सारी जो बीमारियां हैं, इनके बारे में नॉलेज नहीं है लोगों को. इनसे डील कैसे करना है, इनके साथ जिंदा कैसे रहना है, इनके संग जीवन कैसे अच्छे से बिताना है. Here comes the role of the health educator. वर्कशॉप्स होते हैं जो अच्छे हॉस्पिटल्स, बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, दे कंडक्ट वर्कशॉप्स ऑन डिजीजेस. कार्डियक रिलेटेड डिजीजेस होती हैं, लंग्स रिलेटेड होती हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट से रिलेटेड डिजीजेस होती हैं. उनसे रिलेटेड नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड हाउ टू डील विद दोज डिजीजेस एंड हाउ टू लिव हेल्दी इज द जॉब ऑफ अ हेल्थ एजुकेटर. फिर ब्रॉडकास्टर. इफ़ यू सी द पिक्चर, ब्रॉडकास्टर हमारे रेडियो स्टेशंस, एफएम्स, इन सब में आप सुनते हैं ना, कार ड्राइव करते समय कितना मज़ा आता है. आपका सफ़र भी अच्छे से कट जाता है और आपके फेवरेट गाने और कहानियाँ भी आप इंजॉय करते हैं. दिस इज़ द जॉब ऑफ अ ब्रॉडकास्टर. येस, इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पब्लिक स्पीकर. इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है जिसके बारे में हम आने वाले सेशंस में बात करेंगे. फिर मीडिएटर. यू मस्ट बी वंडरिंग, मीडिएटर किस चीज़ का? मीडिएटर का मतलब होता है, फिर वही वाली बात हो गई, एक इंसान प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, एक इंसान प्रॉपर्टी बेचना चाहता है, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन करना, मीडिएशन करना इज द जॉब ऑफ अ मीडिएटर. अगर वो मीडिएटर इफेक्टिव है
तो उसकी डील बहुत जल्दी क्रैक हो जाएगी। उसके लिए क्या ज़रूरी है? इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग स्किल। परचेजिंग मैनेजर, आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ स्पेयर पार्ट्स खरीदने हैं, कुछ टूल्स इक्विपमेंट्स खरीदने हैं, तो उसके लिए परचेजिंग मैनेजर को डील स्ट्राइक करनी होती है। ये काम इंसान तभी कर सकता है जब उसके पास बोलने की अच्छी क्षमता और काबिलियत हो। मूविंग ऑन, फार्मास्यूटिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, जिसको हम लोग आम भाषा में MRB बोलते हैं। इनका भी तो काम वही है कि अपनी कंपनी के मेडिसिन को प्रमोट करना। दे गो एंड मीट द डॉक्टर्स, दे ट्राई एंड कन्विंस द डॉक्टर टू प्रिस्क्राइब देयर कंपनीज मेडिसिन्स टू द पेशेंट्स। सो दिस जॉब ऑल्सो इन्वॉल्व्स पब्लिक स्पीकिंग। मूविंग अहेड, नाउ क्यूरेटर, ये शब्द आपके लिए बहुत नया होगा। क्यूरेटर इज द इंचार्ज ऑफ अ म्यूजियम और एन एग्जीबिशन। His job is to arrange exhibitions, invite the guests, visitors and explain the entire exhibition. आर्ट गैलरीज लगती हैं, एग्जीबिशन लगती है पेंटिंग्स की या क्राफ्ट की, तो उसको जो ऑर्गेनाइज करते हैं और पूरा जो एक्सप्लेनेशन है, पूरा जो ट्रिप टूर होता है विजिटर्स का, इज अरेंज्ड बाय द क्यूरेटर. So obviously, if the curator is good in public speaking, the visitors will be highly impressed and lead to a higher footfall. Footfall मतलब ज़्यादा लोग आएंगे एग्जीबिशन को देखने के लिए. Litigation attorney, associate professor. Professor सब जानते हैं. You all have heard this term. Colleges, universities have associate professors. होता क्या है? Students चाहते हैं कि उनके सामने सिर्फ नॉलेज वाला व्यक्ति ना आए पढ़ाने. द पर्सन शुड बी नॉलेजेबल बट शुड बी वेरी वेरी स्मार्ट एट कनेक्टिंग विद द स्टूडेंट्स. तो यहीं पे टीचर, अ प्रोफेसर हैज नॉलेज, लेकिन ही इज नॉट एबल टू इम्पार्ट दैट नॉलेज टू द स्टूडेंट्स. दैट इज अ गैप. उस गैप को कौन फिलअप कर सकता है? अ पर्सन who knows how to organize the thoughts, how to speak properly in such a convincing way that the students get benefited. So even a role, job like associate professor needs to be very good at public speaking. आप सोच रहे होंगे ना कि अब तक हमें ये पता ही नहीं था कि अच्छा बोलने के लिए भी हमें स्किल डेवलप करना ज़रूरी है. लिटिगेशन अटॉर्नी, लीगल टर्म्स में जिसे हम लोग लॉयर बोलते हैं, जिनके पास आप केस लेके जाते हैं. आपकी ज़मीन पे किसी ने कब्जा कर लिया है और somebody has done some crime, committed some crime, then you approach a lawyer. The lawyer has to show his knowledge and skill. And how would he show? वो कोई फाइलें खोल के तो नहीं बैठ जाएगा. नहीं, he will try to convince the client, the new potential client, through his talking. And talking again means public speaking. Training specialist. Students, training specialists can be from any field. Football coaches, gymnast coach. These are also good at public speaking. Have you seen Chak De? Chak De India. In that movie, although the entire movie is full of thrill, but just before the final match, if you remember, Shah Rukh Khan says, 70 मिनट. ये 70 मिनट तुम्हारी जिंदगी के सबसे कीमती पल हैं. और ये डायलॉग आई एम श्योर आप सब लोगों को याद होगा. जबकि इसको अगर हम लोग स्क्रिप्ट में देखें, अगर आपके सामने वो रिटन फॉर्म में आए, तो उसमें कोई जादू नहीं है. लेकिन इन्हीं लाइंस को जब शाहरुख खान ने बहुत एम्फैटिकली, इफेक्टिवली बोला था, ऑल द ऑडियंस सिटिंग इन द हॉल क्लैप्ड. राइट, दैट इज द मैजिक, दैट इज द पावर ऑफ इफेक्टिव, impressive public speaking. So now moving ahead, you must be wondering that, ma'am, okay fine, we have understood that public speaking is something that can give us career other than those regular careers. The issue is I am so scared, I am very scared of speaking. Public speaking तो छोड़ ही दीजिए, मुझे बोलने में ही डर लगता है, पर मेरा मन बहुत करता है बोलने का. So what do we do? So how to overcome fear of public speaking? Friends, इसमें हम लोग, जैसे कि मैंने आपसे कहा, आगे आने वाले सेशन में बात करेंगे और बहुत डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे घर बैठे बैठे ही आप अपने अंदर का डर भगा करके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, आपकी पर्सनैलिटी को एनहांस करता हुआ करियर ऑप्ट कर सकते हैं.
हमेशा एक बात याद रखिएगा, रैल्फ वॉल्डो एमरसन ने एक बार कहा था, रैल्फ वॉल्डो एमरसन, ही इज अ नोन पोएट एंड अ एसेइस्ट। इन्होंने कहा था ऑल द ग्रेट स्पीकर्स वर बैड स्पीकर्स एट फर्स्ट, विच मीन्स नहीं, you don't have to fear anything. In the beginning, everybody makes mistakes. Even when I started, I made many mistakes. I fumbled. I got nervous. And see, today I am talking to you about public speaking. So there is a journey you have to travel. There is a training. There is a process you have to cover to become an effective public speaker. There is a saying in English, Rome was not built in a day. Yes. प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, रातों रात कुछ भी नहीं होता है। सो आई एम श्योर नाउ यू हैव अंडरस्टूड दैट फियर इज नॉट गोइंग टू स्टॉप यू। कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। दैट इज द मंत्रा फॉर यू। मूविंग ऑन, हेल्पफुल टिप्स टू ओवरकम योर फियर। मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी आज। गेट सपोर्ट। अकेले मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो मैं थोड़ा सपोर्ट लूंगी। सपोर्ट किसका? मे बी यू विल स्पीक टू अ प्रोफेशनल पब्लिक स्पीकर. You will contact people who are experts. Find a speech coach. Watch video. आजकल बहुत आसान है घर बैठे बैठे सीखना। सच कहूँ तो अगर मान लीजिए कि आपको कोई एक्सपर्ट नहीं भी मिलता है, तो वीडियो देख करके YouTube पे हमारा अपना चैनल OLE, उस पर आप जाइए, आपको पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड ट्रिक्स एंड टिप्स मिलेंगी, जिसको कि देख करके आप अपने घर के दायरों में ही अपने फियर को निकाल पाएंगे और पब्लिक स्पीकिंग में एफिशिएंट हो पाएंगे। शुरुआत छोटी ही होनी चाहिए। स्टार्ट स्मॉल। कोई ज़रूरी नहीं है कि भीड़ के सामने आप बोलिए। रिहर्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर। खुद की ऑडियंस खुद बनिए ना, क्योंकि आपसे अच्छा खुद को कोई नहीं समझेगा। आप अपना मजाक कभी नहीं उड़ाएंगे। आपको डर अगर है ना, दैट यू आर स्कैर्ड दैट पीपल विल लाफ एट यू, you would never laugh at yourself. You'll always respect yourself, right? So start rehearsing in front of the mirror. Recording करिए अपनी, record your video, your speeches and repeat those and see where you faltered, where you fumbled, what mistake you made, and next time remove that mistake. Give your speech in front of a friend or a family member. You start with yourself. शुरुआत खुद से करिए, gain confidence and then you talk to your good friend, जिसको आपको पता है कि आपका मजाक नहीं उड़ाएगा और इनफैक्ट आपको सपोर्ट करेगा, आपको गाइड करेगा। Visualize a positive outcome. स्टूडेंट्स, लास्ट पॉइंट मैं फिर से कह रही हूँ, जैसे पैशन के बारे में मैंने कहा था, खाली पब्लिक स्पीकिंग के बारे में नहीं, जिंदगी में आप अगर पॉजिटिव सोचेंगे, उसको इमेजिन करेंगे, विजुलाइज करेंगे अपने दिमाग में, तो आउटकम पॉजिटिव आएगा ही आएगा। नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम बिकमिंग अ विनर। सो नाउ विद दिस पॉजिटिव थॉट आई कम टू द एंड ऑफ टुडेज सेशन. I'm very confident that you all enjoyed and learned so many new things about public speaking. For more details, please visit our website and watch our videos on YouTube. Like, share and subscribe. Till we meet again, thank you so much. Have a wonderful life. Bye-bye.